Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today in this video we are going to continue our chapter 4, the Mughal Empire from class 7th History NCERT syllabus. So let's start our chapter from page number 53 and the topic is a closer look Akbar's policies. यानी अकबर की जो नीतियाँ थी उनको हम थोड़ा करीब से जानेंगे. The broad features of administrations were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, The Akbarnama, in particularly in its last volume, The Ain-e-Akbari. तो अकबर के द्वारा बनाई गई जो एडमिनिस्ट्रेशंस की काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ थी उसको अबुल फजल ने अपनी एक किताब जो अकबरनामा है उसमें बताया था. वो भी ख़ास तौर पर उन्होंने अपने जो लास्ट वॉल्यूम था उसमें बताया था जिसका नाम था आईन-ए-अकबरी. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas, governed by subedar who carried out both political and military functions. Each province also had a financial officer or diwan. For the maintenance of peace and order in his province, the subedar was supported by other officers such as the military paymaster, that is Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage, that is Sadar, military commanders, Faujdars, and the town police commander, that is Kotwal. तो अबुल फजल ने अपनी इस बुक में बताया कि साम्राज्य को मतलब अलग अलग जो प्रोविजंस वगैरह होते थे उसमें डिवाइड कर दिया जाता था जिसे सूबा कहा जाता था और हर एक सूबा को एक सूबेदार रूल करता था जो वहाँ पर वहाँ की जो राजनीतिक और जो सैन्य जो चीज़ें हैं दोनों पर ही काम करता था और उनको वो अंजाम देता था. तो हर एक प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था या फिर यहाँ पर एक दीवान होता था. तो अपने प्रोविंस में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार को दूसरे ऑफिसर्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जिसे बख्शी कहा जाता है. इसके अलावा रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनोज के मंत्री थे जिसे सदर कहा जाता है. मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें फौजदार कहा जाता है. और इसके अलावा जो टाउन पुलिस कमांडर होता था जिसे बोला जाता था कोटवाल. लेट्स मूव. Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. तो अकबर के रईसों ने, नोबल यहाँ मतलब बताया है रईसों ने, तो अकबर के रईसों ने बड़ी सेनाओं की कमान संभाली और बड़ी मात्रा में जो रेवेन्यू है उस तक मतलब उसको इकट्ठा करने की कोशिश की. जबकि वो काफ़ी ज़्यादा वफ़ादार थे, वो काफ़ी लॉयल थे. तो साम्राज्य कुशलतापूर्वक मतलब वो पूरे एम्पायर में बहुत ही एफिशिएंटली वो लोग काम करते थे. लेकिन 17वीं शताब्दी के एंड में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो रईस थे उन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क शुरू कर दिया. मतलब उन्होंने खुद से ये सारी चीज़ें हैंडल करनी शुरू कर दी. उनके अपने स्वार्थ से कमज़ोर हो गए, मतलब वो थोड़े से शेल्फिश हो गए. उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट ये सारी चीज़ें कर ली और जो पहले वफ़ादार थे अपने साम्राज्य के लिए अब वो यहाँ पर कम हो गए. ओके, नेक्स्ट. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on religion with the ulama Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. These discussions took place in the Ibadat Khana. He was interested in the religion and social customs of different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. This eventually led Akbar to the idea of Sulhul or universal peace.
This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulh-e-Gul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. अब क्या हुआ देखिए, जब अकबर 1570 के दौरान फतेहपुर सिकरी में था तब उन्होंने उलेमा, ब्राह्मण, जेसिस्ट पुजारी यानी कि जो क्रिश्चियन में के जो पुजारी होते हैं वो, जो कि रोमन कैथोलिक और पारसी थे, उनके साथ धर्म पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया। तब ये डिस्कशन इबादत खाना में हुई थी, मतलब एक जो प्लेस है, जो इबादत खाना है, जो जगह, वहाँ पर हुआ था ये डिस्कशन। वो लोग अलग अलग लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में रुचि रखते थे। अलग धर्मों के लोगों के साथ अकबर की बातचीत ने उन्हें धार्मिक विद्वानों का एहसास कराया कि अलग अलग धर्म में बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके धर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो नॉलेज थी अकबर को पता चली, जो कि रिचुअल्स और डोगमा पर जोर देते थे। और अक्सर ये लोग बहुत ज़्यादा कट्टर होते थे। बाय गॉड, यहाँ पे मतलब आपको क्या बताया गया है, कट्टर। उनकी शिक्षाओं ने उसकी प्रजा के विभाजन और डिसहार्मनी को पैदा किया था। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो उनकी अकबर के शासनकाल में जो प्रजा में ये जो डिसहार्मनी हो गई थी, मतलब ये जो डिवीज़न हो गया था, तो ये किस कारण हो रहा था, ये अकबर को पता चला वहाँ से। ठीक है, तो इसकी वजह से अकबर को सुलह-कुल यानी कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सल पीस, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक शक्ति, इस पर विचार के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। इस विचार के कारण अपने क्षेत्र में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया गया। इसकी बजाय इन्होंने नैतिकता की एक प्रणाली पर ध्यान दिया, उसको सेंटर में रखा, और जिसमें ये देखा जाता था कि लोग ईमानदार हों, न्याय प्रिय हों, शांति प्रिय हों। और ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल थी। यूनिवर्सली अप्लीकेबल मतलब हर जगह ये चीज़ अप्लीकेबल थी। तो अबुल फजल ने सुलह-कुल के इस विचार पर अकबर को शासन करने में मदद करी, और शासन के इस प्रिंसिपल के अंत में जहांगीर और शाहजहां ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। Now let's move to our next topic, that is the Mughal Empire in the 17th century and after, यानी कि 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का क्या हुआ वो हम इसमें देखेंगे। The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth, but these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. The small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. तो मुग़ल साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी ने काफ़ी ज़्यादा आर्थिक और व्यावसायिक समृद्धि की। इंटरनेशनल यात्रियों ने भी इसे धन की कल्पित भूमि, मतलब उन्होंने बताया कि जब अकबर का शासन चल रहा था तो ये जो भूमि है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धन की कमाई की गई है, इस तरह से उन लोगों ने डिस्क्राइब किया। क्योंकि वो लोग आते थे, विज़िट करते थे, फिर जाते थे, तो वो जो देखते थे उस हिसाब से उन्होंने बताया। लेकिन ये वही लोग मतलब वो लोग थे जो इसकी गरीबी की स्थिति पर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे, वो काफ़ी ज़्यादा चकित थे, जो कि सबसे बड़ी समृद्धि के साथ साथ मौजूद थी। मतलब उनके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा समृद्धि थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब भी थे। तो असमानताएं भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से वहाँ पे दिखती थी। तो शाहजहाँ के शासन में के 20वें वर्ष के डॉक्यूमेंट्स हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि उच्चतम श्रेणी के मनसबदार
8,000 में से केवल लगभग 445 ही थे। ये छोटी सी जो संख्या थी मनसबदारों की, तो कुल संख्या का मात्र आप कह सकते हो कि 5.6% अपने और अपने सैनिकों को वेतन के रूप में साम्राज्य के टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू का लगभग 61.5% ये लोग इनको मिला करता होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव। The Mughal emperors and their Mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry, who supplied them with goods and produce. But the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers. The peasants and the artisans, the poorest amongst them, lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools, and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and the artisanal groups, the merchants and the bankers, profited in this economic world. तो मुग़ल बादशाहों और उनके जो मनसबदार थे, उन्होंने अपनी आय का यानी अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और वस्तुओं पर खर्च करा। इस वजह से कारीगरों और किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ, जिन्होंने उन्हें माल और उपज की आपूर्ति की। लेकिन ये जो रेवेन्यू था, यानी कि ये जो राजस्व संग्रह का पैमाना प्राथमिक उत्पादों को, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे जो लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे किसान हो गए या फिर जो कारीगर हो गए जो हाथों से कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इनके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम बचता था। तो उनमें से सबसे गरीब लोग हाथ से मुंह तक रहते थे, मतलब वो कमा ही इतना कम पाते थे कि उसको वो किस तरह से इन्वेस्ट करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। प्रोडक्शन करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करना, अपने लिए बचाना, तो ये लोगों के लिए बहुत कम बचता था। वो सिर्फ कमाते थे और खर्च कर देते थे, इतना ही उनके पास पैसा बचता था। ठीक है, तो हाथ से मुंह तक ये लोग रहते थे और वे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे जो रिसोर्सेज वगैरह हो गए, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, तो इसकी आपूर्ति के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर शायद ही वो विचार करते थे, वो सोच ही नहीं सकते थे कि हम और किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। जो धनी किसान थे और कारीगर का समूह था, व्यापारी था, बैंकर थे, तो ये इस आर्थिक दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुए, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as power centers of power in the regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. तो 17th शताब्दी के अंत में मुग़ल के बड़े बड़े लोगों के पास विशाल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन, रिसोर्सेज, तो ये सारे जो रिसोर्सेज थे तो उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पावरफुल बना दिया, जिससे पावरफुल ग्रुप्स बने। जैसे जैसे मुग़ल सम्राट का अधिकार धीरे धीरे कम होता गया, उसके जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स मतलब उनके जो सेवक थे, उन्होंने क्षेत्रों में सत्ता के शक्तिशाली केंद्रों के रूप में वो लोग एकदम उभर के आए। वो एकदम से उन्होंने नए राजवंशों का गठन किया और हैदराबाद और अवध जैसे जो प्रोविंस थे उनकी कमान उन्होंने संभाली। हालांकि उन्होंने दिल्ली में मुग़ल सम्राट के अपने स्वामी के रूप में मान्यता देना जारी रखा और 18th शताब्दी तक साम्राज्य के प्रांतों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत कर लिया, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में आगे पढ़ेंगे। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर 4। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।